তো বলবো কি এক্স্যাক্টলি কি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ওখানে ক্ষুদিরাম অনুশীলা কেন্দ্রে 7টা সিট জন্য যার জন্য কন্ট্রোভার্সি ইস্যু হয়েছে তারপরে আমরা বলবো तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता में बंगाल के सीईओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दरअसल स्ट्रांग रूम के बाहर इस वक्त टीएमसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और इसी को लेकर इस वक्त बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनके आरोपों का जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से पारदर्शी तरीके से इस पूरे चुनाव को कराया गया है। अभी वोटों की गिनती में 3 दिन का वक्त है, 4 मई को नतीजे सामने आएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के। लेकिन उससे पहले किस तरीके से राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है ये आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाले वोटों की गिनती से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा। They are perfectly there and they are functional. তার ফুটেজ কিন্তু বাইরে দেখাও যাচ্ছে যেখানে আছে। এইবার আজকে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের একটা স্ট্যাটুটরি প্রসেস আছে, সেখানে সেগ্রিগেশন অফ পোস্টাল ব্যালট করতে হয়। অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিভিন্ন মানে জেলাতে যারা পোলিং পার্সোনাল আছে, যারা ভোট কর্মীরা আছে, তারাও কিন্তু ভোটটা দেয়, তারা কিন্তু পোস্টাল ব্যালট হিসাবে ভোটটা দেয়। এবার সেকেন্ড ফেজের যেগুলো ভোটার্স ছিল, এই ধরনের যেগুলো ভোটার্স ছিল, তারা যে পোস্টাল ব্যালট দিয়েছে, আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টারটা ছিল, আমরা 5টা জায়গাতে ট্রেনিং করেছি বিভিন্ন পোলিং পার্টিদের, সেখানে ওরা পোস্টাল ব্যালট দিয়েছে, সেগুলোকে আমরা জমা করে এখানে রেখে দিয়েছিলাম। একটা অন্য ঘর আছে, মানে ক্ষুদিরাম অনুশীলনের 7খানা এসি স্ট্রং রুম আছে আর একটা পোস্টাল ব্যালটের স্ট্রং রুম আছে। এবার এই যে পোস্টাল ব্যালট ছিল এগুলো সেই এক্সট্রা যে স্ট্রং রুম আছে ওখানে রাখা ছিল। এইবার আজকে যেটা করার ছিল সেটা পুরো স্টেটেই হচ্ছে সেগ্রিগেশন অফ এসি ওয়াইজ পোস্টাল ব্যালট। সেটা করে আমরা কালকে ফোর্সটাকে দিয়ে ওসি পোস্টাল ব্যালট যিনি থাকবেন, এটা প্রত্যেকে ডিও করছে, সেটাকে আমরা বারাসাতে নিয়ে যাব। একটা ক্লিয়ারিং হাউস করে করা হয়েছে, সেখানে সবাই তাদের নির্দিষ্ট, আমরা অন্যদের এসির যে পোস্টাল ব্যালট আছে সেটা তাদেরকে দিয়ে দেব এবং অন্যরা আমাদের যে এসি, আমাদের যে 7খানা এসির পোস্টাল ব্যালট আছে তারা আমাদেরকে দিয়ে দেবে। সেটা আমরা সকাল 10টা এখান থেকে বেরোবো, আর আবার বিকেলে 6টা নাগাদ কিংবা 5টা নাগাদ আমরা ফিরে আসবো, আবার ওইটাকে ভিতরে রাখা হবে, which will go in for counting on 4th of May. So this is a statutory process which was going on, but আমরা ওই ওল্ড ব্যালেটসটাকে বাইরে না নিয়ে এসে ওখানেই যে করিডোরটা ছিল সেখানেই আমাদের এআরওরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, তারা ওই করিডোরের মধ্যেই বসে ওই সেগ্রিগেশনের কাজটা করছিল। এইবার যেহেতু ওখানে স্ট্রং রুম আছে, 7টা এসি আছে, সেই জন্য ওখানে পাওয়ার আমরা রাখতে পারি না, আইন অনুযায়ী এটা করা যায় না। তো এই জন্য ওরা যে লাইটটা ছিল প্লাস কিছু টর্চ লাইটটা নিয়ে বসেছে, ওরা সেগ্রিগেশন করছে, এখনো করছে, কেননা সেগ্রিগেশন করতে টাইম লাগে। তো হ্যাঁ, এইটা আমরা विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी देके टीएमसी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, आरोप ये था कि टीएमसी प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में ये जो बैलेट पेपर रखे गए हैं यहाँ पर इन्हें खोलने की कोशिश हो रही है, बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश हो रही है। और इन्हीं आरोपों के बाद टीएमसी की तरफ से लगातार जो धरना दिया जा रहा था उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, जिसमें जवाब दिया गया है उन तमाम आरोपों का जो टीएमसी ने लगाए थे, जिसमें बताया गया कि पोस्टल बैलेट के लिए अलग स्ट्रांग रूम बनाया गया है, पोलिंग एजेंट्स और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील किया गया है, सभी दलों को इस बारे में जानकारी भी दी गई है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है और संरक्षित है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो कि 29 अप्रैल को संपन्न हुए हैं, 4 मई को इसके नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले कोलकाता में सियासी तनाव बढ़ गया है। तमाम जो टीएमसी के नेता थे, उनके साथ साथ जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने धरना शुरू कर दिया और आरोप लगाया बीजेपी और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप के बाद ही चुनाव की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे और इस बीच चुनाव आयोग सामने आया और चुनाव आयोग की तरफ से इस वक्त टीएमसी की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से अलग स्ट्रांग रूम क्रिएट किया गया है पोस्टल बैलेट के लिए और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 29 তারিখে
23 তারিখ হলো 152 অ্যাসেম্বলি সিটস, 29 তারিখ হলো 142 অ্যাসেম্বলি সিট। যদি কোনো ভোটার কাজ করবে ফেজ 2-তে আর ওর বাড়ি আছে ফেজ 1 যেখানে অ্যাসেম্বলি হয়েছে, তারপরে ওর আছে কি আপনাকে আপনার কনস্টিটিউন্সিতে গিয়ে ভোট দিতে হবে। কিন্তু যে স্টাফ আছে যে ফেজ 2 মধ্যে থাকে ও ফেজ 2 মধ্যে ডিউটি আছে, ওকে তারপরে যেটা আছে আপনার ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার হয়, এটা 2024 থেকে ইসিআই আরাম করেছে। আগে কি হতো, ব্যালেট আপনার কাছে আসতো, ব্যালেট আপনি পোস্ট থেকে দিয়ে দিতেন, ওটা আনে যা পৌঁছতো কি नहीं পৌঁছতো। এবার ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার যে 2024-এ আরম্ভ করেছে ইসিআই, যেখানে ট্রেনিং হচ্ছে ওখানে আপনার যে আছে আপনি ব্যালেট আপনি নিয়ে ওখানে দিতে পারেন। দিতে পরে যেদিন আপনার অন্য ইভিএম আসে ও ব্যালেট বি এখানে এসে যায় স্ট্রং রুমে। কিন্তু তফাৎ কেটা থাকে যে ইভিএম স্ট্রং রুম আছে ওটা সব এক এক কনস্টিটুয়েন্সি এক এক থাকে, ওটা খুলবে শুধু 4 তারিখে যখন কাউন্টিং আরম্ভ হবে। অন্য যেটা আছে ওটা সেগ্রিগেশন করার জন্য আপনার যে আছে এখানে সেগ্রিগেট হয় এসি ওয়াইজ জেলা ওয়াইজ, যেটা আর তারপরে এখান থেকে মাস্টার ক্লিয়ারিং যেটা আছে যে ইসিআই বলেছে আপনার ফেজ 2 জন্য বারাসাত আছে, ফেজ 1 জন্য বেরহামপুর ছিল, জেনারেলি সেন্টার পয়েন্টে আছে কাছে সেন্টার পয়েন্ট মাস্টার ক্লিয়ারিং থাকে। তো সাপোজ এখান থেকে কিছু লোক যে আছে ফার্স্ট ফেজে সাপোজ বর্ধমানে কটওয়াতে কোনো এমপ্লয়ি আছে যেখানে কাজ করছে, ও কটওয়া এসিতে ভোট দিল ও অন্য এমপ্লয়ি দিল, ও সেগ্রিগেট করে সব চলে গেছে কটওয়াতে। কোনো কাল্লা এমপ্লয়ি আছে ওটা চলে গেছে কাল্লা এসিতে, কোনো মঙ্গলকোটা আছে ওখানে চলে গেছে। এই জন্য যত পূর্ব বর্ধমান হবে সঙ্গে এসে যাবে, যত আপনার ও ছিল कहते अन्य যেখানে ছিল আপনার হুগলি ছিল ওটা ওখানে চলে যাবে। तो टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी की जा रही है। टीएमसी नेता जैसे कि शशि पांजा और कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि टीएमसी के प्रतिनिधियों के बिना ही मतपेटियां खोलने की कोशिश हो रही है और ये आरोप सीधे सीधे भाजपा और भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर लगाया जा रहा है। नेताओं ने यह दावा किया है कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें पारदर्शिता नहीं है, जिसको लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग सामने आया और अब एक एक करके टीएमसी के आरोपों को गलत बताता हुआ चुनाव आयोग यहां पर नजर आ रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया है कि ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है, पोस्टल बैलेट के लिए अलग स्ट्रांग रूम है जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित है। पोलिंग एजेंट्स और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। कोलकाता में चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें टीएमसी के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया गया है, जिसमें एक एक करके पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है, वहां पर सुरक्षा भी तैनात है ताकि किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, 23 और 29 अप्रैल को वोट कास्ट किए गए हैं, 4 मई को नतीजे सामने आने हैं। लेकिन नतीजों से पहले बंगाल में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ता आप देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन करके सीधे सीधे भाजपा और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। इसके बाद खुद इलेक्शन कमीशन को सामने आना पड़ा है और इन आरोपों को खारिज इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग कर रहा है। To prove that anything other than the statute, other than the election rules has been done. স্যার শশী বাজা অভিযোগ করছেন যখন স্ট্রং রুম বন্ধ করা হয় তখন পলিটিক্যাল পার্টিদের সামনে একেবারে সই স্বাক্ষর করে হয়েছিল, যখন ব্যালট বক্সের স্ট্রং রুম খোলা হলো কেন তাদের সামনে খোলা হলো না, এটা অভিযোগ করছে। সাপোজ 4টার সময় টাইম দিয়েছেন আসেনি কেউ, তো ওটা খুলবে নাকি? কাল সকালে তো নিয়ে যেত ওখানে। সাপোজ 8 জন ক্যান্ডিডেট আছে, 7 আসবেন 1 আসবেনই না, তো এটা কি এক্সচেঞ্জ হবে নাকি? যে ভোটার দিয়েছে সাপোজ কটওয়া কালনা মঙ্গলকোট, ও ভোট কি ওখানে কাউন্ট হবে নাকি? আপনি বলবেন কি কাউন্টিং সকালে 8টা আরাম হচ্ছে, কাউন্টিং এজেন্ট আসবেই আসবে, আসবে না তো কি হবে নাকি ওখানে? কি কোনো ইনডেফিনিট ওয়েট করবে? এটা কি চুক্তি হলো? এটা কি কোশ্চেন হলো? এটা আপনি খবর পেয়েছেন, আপনি জানেন, ইউ ডোন্ট কাম, হোয়াট ক্যান উই ডু? সবাইকে খবর দেওয়া হচ্ছে, সব খবর দেওয়া হচ্ছে, সব ডকুমেন্টেড আছে, সব আছে, এটা স্ট্যাচুটরি ম্যাটার আছে। আর এরকম কথা হয়তো কমপ্লেন্ট করুন না, আমি পেলাম না, এটা হলো কেন? আপনি নিয়ে নিন। পাবলিক সিন ক্রিয়েট করে কি লাভ আছে? ভাই এটা যেটা আছে আমি বলছি,
যে রুল আছে 60টা সিট আছে ওখানে तो टीएमसी के नेता लगातार कोलकाता में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। आरोप लगा रहे थे कि बैलेट बॉक्स उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना ही खोले जा रहे हैं। इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया गया और बताया गया कि किस तरीके से बैलेट बॉक्स से छेड़खानी हो रही है, धांधली खुलेआम हो रही है। टीएमसी ने तमाम आरोप लगाए बीजेपी और खुद चुनाव आयोग पर ही। आयोग ने अब सामने आकर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि पोस्टल बैलेट के लिए अलग स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बैलेट की छटनी की जा रही थी। इस प्रक्रिया की जानकारी पहले से सभी राजनीतिक दलों को दी गई थी। जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लॉक हैं। पूरी स्थिति जो है वो साफ है, ट्रांसपेरेंट है, कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से टीएमसी के जो तमाम आरोप थे उन्हें गलत और बेबुनियाद बताया गया और अभी भी चुनाव आयोग एक एक करके जो सवाल सामने आ रहे हैं उनका जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। आपत्ति है तो शिकायत करें, पब्लिक में तमाशा ना करें। इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के उस धरने पर भी सीधा सीधा साफ किया है कि अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए शिकायत का रास्ता खुला हुआ है, ना कि आप इस तरीके से खुलेआम प्रदर्शन करेंगे। कोई नियम नहीं टूटा है, ये भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ किया गया है। कोई बाहरी भी स्ट्रांग रूम में अंदर एंटर नहीं हुआ है, ये स्थिति भी साफ कर दी गई है। इस बार वोटिंग वाले दिन बाकायदा क्यूआर कोड से एंट्री की भी बात सामने आई है कि क्यूआर कोड के जरिए लोगों की एंट्री अंदर स्ट्रांग रूम में होगी ताकि कहीं कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर ना जाए, जो वैलिड लोग हैं वही अंदर जा सके। কিন্তু ওদের বাইরে লোক তো আছে, বাইরে আপনার ওয়াচ করার জন্য আপনার ওদের যে লোক আছে ও তো বসেই আছে, এটার ভিতরে থেকে ফিড তো বাইরে যাচ্ছে। ওই ফিডটাই আপনার তো দেখি আপনার 7টা স্ট্রং রুম আছে, ওখানে ক্যামেরা লাগা আছে, যেটা ফিড বাইরে যাচ্ছে। একটা আর পোস্টাল ব্যালটে ফিড যাচ্ছে, যখন দেখছে কি পোস্টাল ব্যালট ওদের হতে পারে ক্যান্ডিডেট ইলেকশন এজেন্ট নেই, বাইরে যে ওদের লোক বসে আছে ওরা তো রাউন্ড দ্য ক্লক বসতে পারবে, দেখতে পারবে। ওরা যখন এখানকার ফিড দেখেছে তারপরে বলছে এটা কি হচ্ছে। ফিডটা তো লাইভই চলছিল বাইরে। বুঝে গেছে, বুঝে গেছে। ভাই এটা আপনি জানুন, আপনি গিয়ে দেখে নেবেন। আমি তো একদম প্রকাশ্যে বলছি যেটা আছে, কোনো গন্ডগোল তো কোনো স্কোপ নেই এখানে, কোনো প্রয়োজন নেই। এই জন্য আমাদের প্রেস কনফারেন্স করতে হলো, ইসিআই বললো ভাই ভাই ক্রিয়েট প্রবলেম যেটা আছে যেখানে প্রবলেম নেই, ফর হোয়াট রিজন। স্যার বলছি যে কুণাল ঘোষ আজকে অভিযোগ করেছেন যে 17 নম্বর সিসিটিভিতে একটা মুভমেন্ট দেখা গেছে 3:30 থেকে 4। पश्चिम बंगाल में 4 मई को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे 3 दिन पहले आप देखिए किस तरीके से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टीएमसी ने एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था और चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। टीएमसी ये दावा कर रही है कि मतगणना से पहले ही बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हालांकि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है और उस पर स्पष्टीकरण इस वक्त दिया जा रहा है। मनोज अग्रवाल बंगाल के सीईओ की तरफ से इस वक्त स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम की निगरानी हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। स्ट्रांग रूम में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया है, स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है, संरक्षित है। अगर किसी को शिकायत है तो फिर कानूनी तौर पर उसकी शिकायत करें, ना कि इस तरीके से हंगामा करें। साथ ही ये भी बताया गया है कि ईवीएम के स्ट्रांग रूम में किसी तरह की गड़बड़ी का कोई स्कोप ही नहीं है। पूरी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कोई स्कोप नहीं है जिसमें ईवीएम से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जाए। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से टीएमसी जो आरोप लगा रही है उसका स्पष्टीकरण देते हुए उसे गलत और बेबुनियाद बताता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बैलेट बॉक्स बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के खोले जा रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया था कि इसमें दरअसल मिलीभगत बीजेपी और चुनाव आयोग की है और बड़े पैमाने पर चुनाव में ये धांधली हो रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा और चुनाव आयोग की तरफ से इस वक्त बताया जा रहा है कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम को सेफ रखा गया है।